Welcome to in the class 12th chapter first challenges of nation building. Today we are going to take the topic reorganization of states. राज्यों का पुनर्गठन. Reorganization Act was passed in 1956. Reorganization Act राज्यों का पुनर्गठन का अधिनियम 1956 में पास किया गया. Now let us know about the reorganization of state in detail. Yes, reorganization of states. The process of nation building did not come to an end with partition and integration of princely states. Now the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian states. This was not just a matter of administrative divisions. The boundaries had to be drawn in a way that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. स्टूडेंट्स, बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ था. अभी हमारे चुनौती जो है पूरी नहीं हुई थी. एक चुनौती अभी भी हमारे सामने थी, वो थी भारतीय प्रांतों की आर्थिक सीमाओं को तय करने की चुनौती. यह महज एक प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था. प्रांतों की सीमाओं को इस तरह से तय करना था कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की भी झलक मिले और साथ ही हमारी राष्ट्रीय एकता का भी कोई खंडन ना हो. इस तरह से हमने जो है स्टेट्स की बाउंड्री इस तरह से निश्चित करनी थी कि उसकी कल्चरल और लिंग्विस्टिक परंपरा भी बनी रहे और देश की यूनिटी को भी कोई फर्क नहीं पड़े. During colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers. औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधाओं के लिहाज से तय की गई थी, या यूं कहें कि ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया था उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था. प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल हो. तो इस तरह से देखा जाता था सीमा तय करने के लिए कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका आता है. Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of states. In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was recognized as the basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself. Many provincial Congress committees were created by linguistic zones which did not follow the administrative divisions of British India. हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था. उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया. सन 1920 में जब कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, दरअसल इसके बाद इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्य का पुनर्गठन जो है वो भाषा के आधार पर होगा. अनेक प्रांतीय कांग्रेस समिति को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी. Now see, things changed after independence and partition. Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to the disruption and disintegration. It was also felt that this would draw attention away from other social and economic challenges that the country faced. The central leadership decided to postpone matters. The need for postponement was also felt because the fate of the princely states had not been decided. Also, the memory of partition was still fresh in our minds. Things changed after independence. आज़ादी और बंटवारे के बाद जो है स्थितियां बदली. अगर ये चिंता हुई, नागरिकों को ये चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जाएंगे तो क्या हो सकता है, डिसऑर्डर, अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश टूटने के कगार पर जा सकता है. हमारे नेताओं को ये भी लग रहा था कि भाषावार राजाओं के गठन से
दूसरे सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का भी ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की पहले ही चपेट में है। तो केंद्रीय नेतृत्व में इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया और रजवाड़ों का मसला अभी भी हल नहीं हुआ था, और क्योंकि बंटवारे की यादें अभी भी हमारे दिमाग में ताजा थी। दिस decision of the national leadership was challenged by the local leadership and the people. Protest began in the Telugu-speaking areas of the old Madras province, which included present-day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. The Vishalendra movement, as a movement for a separate Andhra was called, demanded that the Telugu-speaking areas should be separated from the Madras province of which they were a part and be made into a separate Andhra province. Nearly all the political forces in the Andhra region were in favor of linguistic reorganization of the then Madras province. केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं ने और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ समूह केरल और कर्नाटक में भी हैं। विशाल आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन ने ये मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य सेपरेट आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र के लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत की भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। The movement gathered momentum as a result of the central government's vacillation. Poti Shriramulu, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. This caused great unrest and resulted in violent outbursts in Andhra region. People in large numbers took to the streets. Many were injured or lost their lives in police firing. In Madras, several legislatures resigned their seats in protest. Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra Pradesh in December 1952. केंद्र सरकार हाँ या ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन की ये भूख हड़ताल थी और इस भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल गए और पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल भी हुए और मारे भी गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से रिजाइन भी दे दिया, इस्तीफा भी दे दिया। फाइनली आखिरकार 1952 में दिसंबर में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी गई। Now see students, what happened after the reorganization of Andhra state on the basis of the linguistic. The formation of Andhra spurred the struggle for making of other states in linguistic lines in other parts of the country. These struggles forced the central government into appointing a states reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing of the boundaries of states. The commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. On the basis of its report, the State Reorganization Act was passed in 1956. This led to the creation of 14 states and 6 union territories. आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर कर दिया गया, लेकिन इससे क्या हुआ, दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्य को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य का पुनर्गठन आयोग बनाया। उसने इस आयोग को ये कहना था, ये रिपोर्ट देनी थी
कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा उस 14 राज्य बनाए गए और 6 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। One of the most important concerns in the early years was that demands for separate states would endanger the unity of the country. It was felt that linguistic states may foster separatism and create pressures on the newly founded nation. But the leadership, under popular pressure, finally made a choice in favor of linguistic states. It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of the division and separatism would be reduced. Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. आज़ादी के शुरुआती सालों के बाद सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी, जबकि हमारी पहली चुनौती क्या थी कि देश को एक कैसे किया जाए। आशंका ये थी कि नई भाषाएं राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव भी पड़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का मन बनाया गया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके में क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया जाए तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया, क्योंकि देश के आज़ाद होने के बाद एक चुनौती हमारे सामने ये भी थी कि सभी का विकास, चाहे वो किसी एक वर्ग का विकास ना हो, सबका विकास हो। तो ये मान लिया गया कि अगर हम भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन करेंगे तो एक लोकतांत्रिक कदम होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण केवल लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए नहीं, बल्कि कल्चर और संस्कृति और परंपरा के आधार पर भी किया गया, भाषा के आधार पर और साथ के साथ संस्कृति के आधार पर भी किया गया। थैंक यू।